Good morning, students. From today, we are going to start our chapter 3, that is 1D motion, right? 1D means one dimensional motion. So, students, we all know that practically we have three dimensions, right? 1D, 2D and 3D. 3D means three dimensions. तो अगर हम practically देखें तो we have only three coordinate system or three dimensions in generally. In this chapter, we are going to study about 1D motion, that is we are going to study the motion of those objects which are moving in a single straight line. ठीक है, जब ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मतलब एक ही डायमेंशन में मूव करता है, तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन. एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस 1D मोशन. ओके, so first of all, we have to study some of the definitions that are based on 1D motion. This, okay, the first one is statics. Okay, तो static का मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही प्लेस पर है तो हम उसको बोलते हैं that it is at rest, right? So we can say that whenever the position of the object is not changing with respect to time, then it is said to be in the state of rest, right? तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट में हैं, जब हम उन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो that comes under statics. So we can say that statics is that branch of physics which deals with the objects which are at rest. Okay, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि रेस्ट में हैं, जब हम उनकी स्टडी करते हैं तो उसको बोला जाता है, उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को बोला जाता है स्टैटिक्स. ओके, फॉर एग्जांपल ये कोई टेबल है और इस टेबल पर ये कोई बुक रखी हुई है ना? अगर इस बुक पर मैं एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो इसकी पोजीशन हमेशा यही रहेगी, राइट? सो दिस बुक इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. So whenever we study the objects that are at rest, then their study comes under the branch of physics, and that branch of physics is called as statics. Is that clear? Now the second one is dynamics. So dynamics is just the opposite of statics. Dynamic मतलब something which is in motion. Static का मतलब something which was in rest. Dynamic का मतलब something which is in motion. So we can say that whenever the position of object is changing with respect to time, then it is said to be in the state of motion, right? For example, if we are moving our bicycle or motorbike, then obviously our position will get changed with respect to time, right? Initially मान लीजिए हम यहाँ पे थे, कुछ समय बाद हम यहाँ हैं, कुछ समय बाद हम यहाँ पे आ गए, राइट? इसका मतलब हमारी पोजीशन जो है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है. इट मीन्स वी आर इन motion. So whenever we study the objects that are in motion, then it comes under the branch of physics, and that branch of physics is called as dynamics. तो statics में हम जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उनकी स्टडी करते हैं, और डायनेमिक्स में हम जो ऑब्जेक्ट्स मोशन में हैं उनकी स्टडी करते हैं, राइट? Now there is a term kinematics. Okay, so what do we mean by the word kinematics? The kinematics has been made from the word kinema. ये जो kinematics है वो इस word से बना है, that is kinema. और kinema का मोशन मतलब होता है motion. Okay, so whenever the object is in motion and we study that object, then it comes under kinematics. तो वही चीज हमने डायनामिक्स में भी देखी थी. तो फिर इन दोनों में अंतर क्या, राइट? तो इन दोनों में अंतर सिर्फ ये होता है कि जब हम काइनेमेटिक्स में किसी ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं दैट इज इन मोशन, देन वी नेग्लेक्ट द फैक्टर्स ड्यू टू विच इट इज इन मोशन. ठीक है, इसका मतलब जब हम उन फैक्टर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं जिन फैक्टर्स के कारण ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन कर रहा है, तो दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, एंड दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड एज काइनेमेटिक्स. ओके, so whenever we study the objects that are in motion but neglecting the cause of motion, then it comes under the branch of physics, and that branch of physics is called as kinematics, which has been derived from the word kinema, which means motion. Okay, now there is a term proper dynamics. Okay,
So what do we mean by proper dynamics? Dynamics and proper dynamics sound similar, right? The only difference between dynamics and proper dynamics is that actually जो dynamics है वो kinematics और proper dynamics से मिलकर बना है, और proper dynamics में हम उन objects की study तो करते हैं जो motion में है, लेकिन साथ ही में वो किस वजह से motion में है हम उन factors की भी study करते हैं. For example, अगर कोई object या अगर कोई bicycle है वो चल रही है, तो वो किस फोर्स के कारण चल रही है, जब हम उस फोर्स की भी स्टडी करते हैं जिसके कारण वो बाइसिकल चल रही है, तो दैट कम्स अंडर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर डायनेमिक्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्जेक्ट इन मोशन. व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म ऑब्जेक्ट इन मोशन? ऑब्वियसली हमको नाम से ही समझ में आ रहा है that whenever the position of an object is changing with respect to time, then it is said to be in motion, right? इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, कुछ समय बाद यहाँ आ गया, कुछ समय बाद यहाँ आ गया, इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती जा रही है, राइट? तो जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाती है, देन इट इज सेड टू बी इन द मोशन. और जब भी हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो उसको हम बोलते हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती जाती है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन मोशन, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली स्टूडेंट्स नाम से ही समझ में आ रहा है पॉइंट, दैट इज समथिंग विच इज वेरी स्मॉल, बट यहाँ पे स्मॉल साइज में नहीं है. एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज whenever the size of the object is so small as compared to the distance traveled by it. ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा होता है as compared to the distance that it has traveled, then it is called as point object. For example, क्रिकेट ग्राउंड में जो हमारी बॉल होती है, क्रिकेट बॉल होती है, वो बॉल का साइज बहुत छोटा होता है, राइट? बट जब हम उस बॉल को हिट करते हैं तो वो बॉल पूरे ग्राउंड में ट्रैवल करती है, राइट? सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट बॉल is very more as compared to its size, right? That's why it is said to be point object. इसका मतलब जब भी किसी ऑब्जेक्ट का साइज बहुत छोटा हो as compared to the distance it traveled, then it is called as point object. And हमारी अर्थ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि अर्थ का साइज छोटा है एज कंपेयर टू द ऑर्बिट जिसमें हमारी अर्थ रोटेट कर रही है, राइट? तो जब हमारी अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है तो उसका साइज बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस दैट इट इज ट्रेवलिंग. दैट्स व्हाई आवर अर्थ इज ऑल्सो सपोज टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, राइट? नाउ the next topic is 1D motion. Whenever the object is moving in one dimension only, आपको पता है कि 3 coordinate system होते हैं, right? ये x, y और ये z है ना? तो जब भी ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायमेंशन में मूव करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन. ओके, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट का केवल x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, देन इट इज सेड टू बी इन 1D मोशन, राइट? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट केवल एक ही डायमेंशन में चल रहा है तो y और z तो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज ही नहीं होंगे, राइट? दैट्स व्हाई व्हेन ओनली द x कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, देन इट इज सेड टू बी इन 1D मोशन. सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट x और y दोनों डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, इसका मतलब उसका x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, देन इट इज सेड टू बी इन द 2D मोशन. एंड सिमिलरली 3D में जब ऑब्जेक्ट के तीनों डायमेंशंस चेंज हो रहे हैं, दैट इज x, y और z, देन इट इज सेड टू बी इन 3D मोशन. सो व्हेनेवर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन वन डायमेंशन, देन ओनली द x कोऑर्डिनेट विल गेट चेंज. व्हेन इट इज मूविंग इन 2D मोशन, then x as well as y coordinate will change. And when it is moving in 3D motion, then x, y and z, all the 3 coordinates will get changed with respect to time. Okay. Now the next one is motion in a straight line. जब कोई object straight line में motion करता है, for example an ant, है ना?
एक आंट का जो मोशन है दैट इज सपोज टू बी द स्ट्रेट लाइन मोशन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। और अगर हम फिजिक्स की टर्म में देखें तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मोशन करता है कि उसका मोशन इस इक्वेशन को फॉलो करे, देन इट इज सेड टू बी then its motion is said to be in the straight line motion. Okay, so these are some of the definitions that we have to study before starting this chapter, that is 1D motion. तो हमको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारी डेफिनेशंस क्लियर होनी चाहिए और इनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए, राइट? नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज now the next topic is distance and displacement, right? This topic you have already studied in class 9th also, but just for revision purpose we will go through this topic once, right? What do we mean by distance? Okay, so distance की simple सी definition होती है the length of path traveled. हम किसी point A पर हैं और ये B है, ठीक है? हम यहाँ से ऐसे गए और फिर ऐसे गए, ठीक है? इसका मतलब हमने मान लिया हम यहाँ पे 5 किलोमीटर चले और यहाँ 3 किलोमीटर चले। तो डिस्टेंस का मतलब क्या, A और B के बीच की जो डिस्टेंस होगी दैट इज बेसिकली द टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड। जितना पाथ हम ट्रेवल करेंगे उस लेंथ, उस पाथ की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, राइट? So the distance between A and B is the total length of path traveled. दो पॉइंट्स के बीच की जो लेंथ होती है, जो टोटल पाथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। नाउ सिमिलरली जो डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, राइट? सो A से B तक अगर मैं इस तरीके से जाता हूं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, राइट? इसका मतलब A और A से B तक अगर मैं इस रास्ते से जाता हूं तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता हूं तो मुझे कितना चलना पड़ रहा है, 7 किलोमीटर, राइट? लेकिन अगर मैं इस पाथ को फॉलो करता हूं तो मुझे केवल कितना चलना पड़ रहा है, 5 किलोमीटर। तो जब हम A से B तक इस पाथ को फॉलो करते हुए जाते हैं देन दिस शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन A and B is said to be the displacement, right? That is 5 kilometers. So distance का मतलब total length of path covered और displacement का मतलब the shortest path between the two points. इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं displacement को। Suppose कोई object पहले यहाँ रखा हुआ है और उसके बाद मैंने उसको उठाकर यहाँ रख दिया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो distance होगी उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं A से B तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करता हूं तो वो हमें किस तरीके से कर सकता हूं, लेंथ की टर्म्स में, राइट? तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l t0। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m0 l t0, राइट? और जो SI यूनिट होती है लेंथ की वो आपको पता है मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की भी क्या SI यूनिट हो जाएगी, मीटर। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला इन यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ, राइट? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम बात कर रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, राइट? चाहे वो नॉर्थ में 5 किलोमीटर दूर रखा हो, मान लीजिए ये कोई बुक है
और ये कोई पेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई पेन है, यहाँ पे कोई बुक है। तो अगर मैंने बोल दिया कि बुक और पेन के बीच की डिस्टेंस 5 किलोमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, तो चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में हो, मुझे वहां पे डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। डिस्टेंस हर डायरेक्शन में सेम ही रहेगी। इसका मतलब डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मुझे वहां पे डायरेक्शन एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो वहां पे हमको डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डायरेक्शन बताने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? सपोज मान लीजिए कोई बुक है, वो यहाँ रखी है, राइट। मैंने आपको बोल दिया कि इस बुक को डिस्प्लेस करिए, तो आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि सर इस बुक को डिस्प्लेस करके कहाँ रखना है, राइट। तो जब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो हमको वहाँ पे डायरेक्शन पता होना चाहिए कि अगर मुझे इस बुक को डिस्प्लेस करना है तो किस डायरेक्शन में करना है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में या वेस्ट में। तो जब हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, देन इट इज कॉल्ड एज वेक्टर। दैट्स व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर while distance is a scalar quantity, right? ऑब्वियसली बात है कि दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होती है, राइट। हमने कभी भी नहीं सुना है कि ए से बी तक की दूरी -5 किलोमीटर हो या -5 मीटर हो या -5 सेंटीमीटर हो, राइट। तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव एंड जीरो, ठीक है। पॉजिटिव तो हो ही सकती है डेफिनेटली, ए से बी तक की डिस्टेंस 5 किलोमीटर, पॉजिटिव तो हो ही सकती है, लेकिन जीरो कैसे हो सकती है वो समझते हैं। सपोज हम बात कर रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर है पॉइंट ए पर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया और जब ये पूरा चक्कर लगाकर फिर से ए पर आ जाता है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब चेंज इन इट्स पोजीशन, वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से अपनी जर्नी शुरू करे और पूरा चक्कर लगाकर फिर से वहीं पर आ जाए, तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कैसा होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि उसकी पोजीशन में तो चेंज ही नहीं हुआ, तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ऑब्वियसली जीरो, राइट। So, जब किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज सेड टू बी जीरो। इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल, एज वी हैव सीन इन दिस डायग्राम कि ए और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 5 किलोमीटर। नाउ द क्वेश्चन रेजेस कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, राइट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है वो समझते हैं। सपोज यहाँ कोई बुक रखी है, मैंने आपको बोला कि आपको इसको नॉर्थ में डिस्प्लेस करना है, ठीक है, मतलब आपको इसको उठा के यहाँ रखना है, लेकिन आपने बाय मिस्टेक उसको उठाकर साउथ में डिस्प्लेस कर दिया। तो आपको रखना चाहिए था नॉर्थ में, बट आपने उसको रख दिया है साउथ में। तो इन दैट केस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नेगेटिव, राइट। So in this way we can conclude that the displacement can be positive, negative and zero, while the distance can only be positive, right? Now we will see some numericals that are based on distance and displacement, okay? So now we will solve one numerical that is based on distance and displacement, right? If a body moves along a semicircular path of radius 7 meter, क्या बोल रहे हैं कि एक path है that is semicircular like this, right? तो अगर कोई बॉडी एक semicircular path पे मूव करती है जिसकी रेडियस दे रखी है आपको 7 मीटर, then find distance traveled by the body and its displacement. वो A से चलना शुरू करती है और B तक आती है, तो आपको उसकी डिस्टेंस भी निकालनी है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, राइट। सो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस तो ऑब्वियसली जब वो यहाँ से चल के यहाँ आई तो हमको इस पूरे पाथ की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, राइट, कि ये टोटल पाथ कितना होगा। तो हमको पता है द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस
ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस की बात करते हैं तो दैट इज 2 पाई आर, राइट। लेकिन यहाँ पे सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है इसका मतलब क्या, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर, राइट। तो जब हमको डिस्टेंस निकालनी है तो बेसिकली जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू circumference of semicircle that is 2 pi r divided by 2 से 2 कैंसल that is pi r। पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r की वैल्यू हो गई 7 से 7 कैंसल 22 मीटर इज द distance that is traveled by the object between A to B, right? Now if we have to find the displacement, then obviously the displacement is the shortest path, that is the shortest path is this, right? तो basically shortest path क्या हो जाएगा, diameter of semicircle है ना। तो displacement कितना हो गया, displacement is equal to diameter of semicircle, और diameter of semicircle आपको पता है क्या होता है, 2 into radius, that is 2 into radius आपको दी है 7 to the 14 meter. So this is the displacement of the object when it is moving in the semicircular path from A to B. तो distance हो गई 22 मीटर और displacement हो गया 14 मीटर, right? So that's all for today's class, students. The further topics we will study in the next lectures. Okay, thank you.